नमस्ते, मेरा नाम राधिका शर्मा है और मैं एक योग अभ्यासी और योग टीचर हूँ। मैं अपने 9th मंथ में हूँ प्रेगनेंसी के और आज कपल ऑफ एक्सरसाइजेस करेंगे जो ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखते हैं इन 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपने ये अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइजेस ये वाले योग अभ्यास नहीं किए हैं तो आप कृपया इन योग अभ्यास को ना करें। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की है, थोड़ा बहुत मूवमेंट किया है अपनी बॉडी में, तो आप भी कर सकते हैं। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं एक्सरसाइज करने वाली हूँ, सिंपल कुछ योग अभ्यास जिससे हल्की मूवमेंट रहती है जॉइंट्स में, बॉडी में। और क्योंकि 9th मंथ तक आते आते बहुत सारे कपड़े फिट होने बंद हो जाते हैं, तो आप ऐसी कोई भी कंफर्टेबल चीज़ पहनें जिससे आपकी बॉडी को किसी तरीके की उलझन ना हो, या फिर आपको किसी तरीके से कपड़े जो हैं वो आपको बाध्य ना करें कि आप नहीं मूव कर पा रहे हैं। तो कुछ खुला खुला पहने मेरी तरह। और चलिए शुरू करते हैं कुछ योग अभ्यास। तो सबसे पहले हेड, नेक एंड स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड, थंब एंड इंडेक्स फिंगर टचिंग। आप ये अभ्यास अपने बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, सोफ़ा पे बैठ के भी कर सकते हैं, और मेरी तरह अगर आप क्रॉस लेगेड पोजीशन यानी कि चौंकड़ी मार के बैठ सकते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन and slowly breathe out. But long, deep breath in and slowly breathe out. Keep breathing and breathe out. Breathe in for 1, 2, 3, 4. Breathe out for 4, 3, 2, 1. In through your nose, breathe in for 1, 2, 3, 4. Breathe out 4, 3, 2, 1. Breathe in 1, 2, 3, 4. Breathe out 4, 3, 2, 1. Breathe in 1, 2, 3, 4. Breathe out 5, 4, 3, 2, 1. Breathe in 1, 2, 3, 4. Breathe out 5, 4, 3, 2, 1. Breathe in 1, 2, 3, 4. Breathe out 5, 4, 3, 2, 1. Breathe in 1, 2, 3, 4. Breathe out 4, 3, 2, 1, 0. Breathe in 1, 2, 3, 4. Breathe out 5, 4, 3, 2, 1. Breathe in 1,
2, 3, 4. Hold your breath in for 1, 2, 3, 4. Breathe out 4, 3, 2, 1. Breathe in 1, 2, 3, 4. Hold your breath in for 3, 2, 1. Out 1, 2, 3, 4. Breathe in 1, 2, 3, 4. Hold your breath in 4, 3, 2, 1. Exhale 4, 3, 2, 1. Breathe in 1, 2, 3, 4. Hold your breath 4, 3, 2, 1. Exhale 4, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 4, 3, 2, 1. Exhale 4, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 4, 3, 2, 1. Exhale 4, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 4, 3, 2, 1. Exhale 5, 4, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Hold 4, 3, 2, 1. Exhale 5, 4, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Hold 4, 3, 2, 1. Exhale 5, 4, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Hold 4, 3, 2, 1. Exhale 5, 4, 3, 2, 1. Inhale slowly and deeply. Exhale slowly. Longer than inhalation if you can. Keep breathing. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
Inhale, exhale. Slowly open your eyes. This is a variation of box breathing, तो controlled breath movement. अगर आप चाहें तो आप breath आउटसाइड भी रिटेन कर सकते हैं, पर यूजुअली प्रेगनेंसी में ब्रेथ को आउटसाइड रिटेन करने का विकल्प जो है, ऑप्शन जो है, नहीं दिया जाता है. तो चलिए अब हम नेक्स्ट व्यायाम की तरफ चलते हैं. सो नेक रोटेशंस. इनहेल, exhale, tuck your chin. Inhale, right ear towards right shoulder. Drop your head back. Left ear, left shoulder. And tuck your chin. Keep slowly moving your neck muscles. Keep breathing. Keep moving. Keep breathing and keep moving. After completing 5 rounds, we will reverse rotations. So it means inhale, left ear, left shoulder, drop your head back, right ear, right shoulder, and tuck your chin. So you inhale when you lift your head up, and you exhale when you bring it down. 2. Inhale up. 3. Inhale up. 4. One last inhale up, and as you exhale, tuck your chin to your chest. Slow and gentle movement. Inhale, lift your head up. If you feel dizzy, keep your eyes closed. Keep breathing. Stay here, be present. Take a breath. Take a moment. And slowly open your arms wide. Flip your palms. And then flip again. Palms facing up. Palms facing down. Forward, right hand forward. Left hand forward. Keep moving. Keep breathing. Slow and steady. बहुत स्लाइड सा मूवमेंट हो रहा है हमारी वेस्ट में. अगर आपको ये वेस्ट मूवमेंट में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ये वेस्ट मूवमेंट बंद कर सकते हैं, और या फिर अपनी आर्म्स को इतना ही करिए जितना आपको इजीली मूव करने में कोई मुश्किल ना हो. हम थोड़ा सा वेस्ट मूवमेंट कर रहे हैं. बेली मूवमेंट हो रहा है. टू मच नहीं करना है, कोई जर्क नहीं देना है. स्लो एंड डाउन. कीप ब्रीदिंग. और अब इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन. अप, down. Inhale,
दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल, दोनों हाथ नीचे, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल, दोनों हाथ नीचे, अप, डाउन, अप, डाउन, 3, 2, 1. Reverse rotations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release. थोड़ा थोड़ा यहाँ थकावट लग रही है, but it's all good. Healthy. अब हम अपनी लेग्स को यहाँ थाई मसल्स को मूव करेंगे, तो हम इस तरीके से बैठ जाएंगे ट्रायंगल बना के। जितना भी आप अपने लेग्स को खोलने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि वाइड आप अपने नीज़ को लेके जा सकते हैं, उतना ही करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा करना है। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, नीचे हिप के नीचे आप किसी भी तरीके का कुशन रख सकते हैं, या अगर आप बेड पे कर रहे हैं तो कोई पिलो भी रख सकते हैं, नीचे भी कर रहे हैं तो कोई पिलो भी रख सकते हैं, सोफ़ा पे भी आप कोई पिलो या कुशन रख सकते हैं। तो इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स अपनी, और इस तरीके से हम बटरफ्लाई आसन करेंगे 1 मिनट के लिए। Keep breathing, keep moving. एक मिनट के लिए हम अपने थाई जॉइंट्स को मूव करेंगे, अपने हिप मसल्स को जितना कर सकते हैं उतना। अगर आप अपने जो पेल्विक रीजन है, आपका पेल्विक रीजन, और आप अपने हील्स के बीच में थोड़ा और स्पेस लाना चाहते हैं, तो आप अपने पैरों को थोड़ा आगे भी रख सकते हैं, अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं। तो जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप वैसे रख सकते हैं। अपने एंकल्स को इस तरीके से हल्का सा टच कर सकते हैं। अगर आप इंटरलॉक ऐसे नहीं कर पा रहे, आपका हेड, नेक एंड स्पाइन स्ट्रेट नहीं रख पा रहे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो थोड़ी वेरिएशन हम ले आएंगे अपने व्यायाम में। तो जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना करें। कीप ब्रीदिंग, कीप मूविंग। हिप मसल्स मूव करेंगे, जितनी हो सकती है उतनी। Keep breathing, keep moving. Head, neck and spine straight, eyes closed. Keep breathing, keep moving. नाक से सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। दोनों नॉस्ट्रिल्स एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।
अगर आपको ब्रेक चाहिए ये एक्सरसाइज करते हुए, ये व्यायाम करते हुए, तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको थोड़े ब्रेक की ज़रूरत है तो आप रुकें, सांस लें, थोड़ा ब्रेक लें और दोबारा रिज्यूम कर लें। तो ठीक है, अब हम रुकेंगे। 1 मिनट हमने ये व्यायाम कर लिया है। तो अब हम कोशिश करेंगे मार्जरी और बितल आसन करने की, विच इज़ कैट एंड काउ पोज। अगर आप कर सकते हैं अपनी नीज़ के ऊपर आके तो ठीक है। बेड पे ध्यान देना है कि कभी कभी मैट्रेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन टू योर ऑल फोर्स, आप बैठे बैठे भी ये आसन कर सकते हैं। बैठ के कैसे करना है? सांस लेते हुए आप अपनी बेली को आगे लाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, और सांस छोड़ते हुए tuck your chin into your chest, और फिर से एक बार। और इससे क्या होता है कि आपकी कीगल एक्सरसाइज भी होती है, यानी कि आपके पेल्विस की भी, प्यूबिक एरिया की भी, पेल्विस की भी एक्सरसाइज होती है। तो होता क्या है, जब आप सांस लेते हैं इस तरीके से, आप अपनी बेली को बाहर की तरफ लाते हैं, तो आपके जो पेल्विक पूरा रीजन है वो रिलैक्स होता है। और जब आप अंदर की तरफ जा रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल्स। तो ये पेरिनियल एक्सरसाइज में भी आता है, जो आपको प्रिपेयर करता है आपकी लेबर के लिए। जब आप अपनी पेल्विक रीजन की मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो बैठे बैठे करना चाहते हैं इसी को करेंगे। और हम अब इस तरीके से करेंगे कि ऑल फोर्स पे आ जाएंगे और हम ऑल फोर्स पे आके ये एक्सरसाइज करेंगे। तो हाथ आपके बिल्कुल शोल्डर्स के नीचे। इनहेल, सांस लेते हुए बेली को मैट की तरफ, around your back, chin to chest. Keep breathing. Keep breathing. सांस लेते हुए arch your back, send your belly towards your chest, keep breathing. Send your belly towards your mat. Arch your back, try and look up, and as you exhale, tuck your chin to your chest, round your back, keep breathing. Slow and gentle movement, no pushing, no pulling. Like I said, आप बैठ के भी कर सकते हैं ये आसन, और टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद ऑल फोर्स के ऊपर भी। Keep breathing.
Keep breathing. सांस छोड़ते हुए round your back. Tuck your chin to your chest. Keep breathing. And neutral back. And we will sit. इस तरीके से हम बैठेंगे. Eyes closed या open, depending upon आपको कितना अपने breath के ऊपर वापस जाने की ज़रूरत है. अगर आप breathless हो रहे हैं, which is common in 9th month of pregnancy, तो आप यहाँ पे wait करें. नहीं तो हम अपनी knees के ऊपर जाएंगे और थोड़ा अपने pelvic जो region है उसकी movement के लिए exercise करेंगे. तो इस तरीके से आप आ सकते हैं child's pose की position में और आप आगे and पीछे rock करेंगे like this. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keep breathing here. Stay here. आप अपनी elbows को नीचे ला सकते हैं if you want. Stretch. Let's begin again. फिर से अपने घुटनों पे और अपने हाथों पे हम आएंगे. 2. सांस लेते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्लोली अपने हाथों की हेल्प से हम वापस आएंगे. इस तरीके से बैठेंगे. Keep breathing. Keep moving. Motion is lotion. किसी ने मुझे कहा था कि प्रेगनेंसी में थोड़ा मूवमेंट जो है आपकी मसल्स को वार्म्ड अप रखता है और थोड़ा मूवमेंट में हेल्प करता है. Come back to your natural breathing. And slowly अपने हाथों की हेल्प से आप उठेंगे और हम क्या करेंगे अब साइड लंजेस करेंगे. अगर पॉसिबल हो पाता है तो तुम साइड लंजेस करने के लिए या तो आप अपनी नी को इस तरीके से रख सकते हैं या फिर हल्का सा आर्च दे के रख सकते हैं. आप एंगल में बैठ सकते हैं ताकि नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आए. तो डिपेंडिंग अपॉन कितना आप कंफर्टेबल हैं किस पोजीशन में आप वो ट्राई कर सकते हैं. तो हम साइड लंजेस करने की कोशिश करेंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release. अब हम दूसरी साइड चलेंगे कंफर्टेबली.
जितना भी आप कंफर्टेबल हो। यहाँ पे डेक बना हुआ है तो स्पेस है एक वुडन ब्लॉक में दूसरे वुडन ब्लॉक के लिए। तो आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट। ओके, एडजस्टेड, लेट्स बिगिन। Okay, let's try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And down. Keep breathing. We will keep moving. Comfortable? Okay. So, again मैं ब्लॉक्स पे अपने आप को एडजस्ट कर रही हूँ। बैठेंगे, दोनों हाथ ऐसे या अपनी बेली के नीचे हम सपोर्ट करेंगे। एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take a moment. Catch your breath. आप चाहें तो बेली बैंड भी पहन सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट्स अपनी शर्ट के साथ पहनी है उसमें एक बेली बैंड ऑलरेडी बना हुआ है विच सपोर्ट्स अंडरनीथ ऑफ माई बेली। अगर आप चाहें तो थोड़ा लूज सा बेली बैंड पहन सकते हैं जिससे आपको हल्की सपोर्ट मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन अगेन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And let's catch our breath one more time. Deep breathe in, deep breath out. अगर आप चाहें तो अभी क्रॉस लेगेड पोजीशन बैठ सकते हैं। काफ़ी देर से हम अपने नीज पर बैठे थे वज्रासन में। चाहें तो आप क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ सकते हैं टू कैच योर ब्रेथ। Keep breathing. Breathe. Keep breathing. Keep breathing. अगर आपको पॉज करना है वीडियो को तो आप पॉज करिए, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़े ब्रेक्स लीजिए, फिर आप वापस से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेडी हैं तो हम थोड़ा आगे मूव करेंगे, थोड़ी सी और कपल ऑफ एक्सरसाइजेस करके फिर उसे ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है, आप दोनों लेग्स को इस तरीके से साइड में ले आइए, अपने हाथों की हेल्प से आगे आ जाएंगे। एक बार और ऑल फोर्स पे आएंगे और स्लोली अपने जो हाथ हैं उन्हें इस तरीके से आगे लाएंगे। अब हम करेंगे अनाहत आसन या फिर पपी पोज जिसे कहते हैं यिन योगा में। तो अपने नाक से सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। कीप ब्रीदिंग। ब्रेथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी में, तो हम ट्राई करेंगे कि हम अपने ब्रेथ पे कंट्रोल कर सकें ताकि लेबर में थोड़ी आसानी रहे।
Keep breathing. Keep breathing. नाक से सांस लेंगे और नोज से ही छोड़ेंगे. इस आसन से बाहर आने के लिए स्लोली हम अपने हैंड्स की हेल्प लेंगे. थोड़ा भार जो है अपने हाथों पे डालेंगे और स्लोली वॉक करते करते अपने हाथों से वापस आएंगे. अब हम विंडशील्ड वाइपर्स करेंगे. विंडशील्ड वाइपर्स करने के लिए हमें दोबारा से बैठना पड़ेगा अपने हिप्स के ऊपर. आप अपने हिप्स के नीचे कुशन रख सकते हैं. मैं राइट साइड सर्कल करके बैठूंगी. पहले मैं लेफ्ट साइड अपने लेग्स को सर्कल करके बैठी थी. तो दोनों हाथ आपके थाई के बाहर आएंगे और फिर हम इस तरीके से बैठेंगे. ओके, तो अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, अपने जो फीट हैं उन्हें मैट विड्थ अपार्ट खोलेंगे और उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से सपोर्ट के लिए रखेंगे और इस तरीके से हम अपनी मूवमेंट करेंगे पेल्विक रीजन की, अपने नीज की, और बेली हल्का हल्का साथ मूव हो रहा है. तो ठीक है, आप विंडशील्ड वाइपर करेंगे 1 मिनट के लिए और अब ब्रेथ के साथ इनहेल व्हेन यू कम अप, एक्सहेल व्हेन डाउन. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down, up, down, up, down, up, down, up, down. अगर आप थोड़ा आगे खिसक गए हैं मेरी तरह तो थोड़ा पीछे भी आ सकते हैं. Inhale up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Inhale up, down, up, down. Inhale center and head, neck and spine straight. यहाँ से हम एक ऐसा पोज करेंगे जो आपके पेल्विक रीजन के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन आप तभी करेगा अगर आप कर सकते हैं. आगे एक चेयर की सपोर्ट है तो आप चेयर की सपोर्ट लीजिए. आपके पास बेड की सपोर्ट है तो आप बेड के लेफ्ट राइट किसी एंगल पे बैठ के
आप गद्दे के ऊपर हाथ रख के ऐसे ये आसन कर सकते हैं, सोफे पे हाथ रख सकते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ पे हाथ रख सकते हैं जो चीज़ स्टेशनरी है, मूव नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से आएंगे और ऐसे बैठेंगे। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, हम सिर्फ अपने इस तरीके से पेल्विक रीजन को सपोर्ट करने के लिए पैरों के ऊपर आएंगे और हल्का इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। यस, जस्ट दिस movement. Keep breathing. Keep breathing. आप दोनों हाथ इस तरीके से भी रख सकते हैं हल्के मैट के ऊपर। या आप बेड के ऊपर दोनों हाथ रख के इस तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं। सोफे पे, चेयर पे, कहीं पे भी उस चीज़ का सपोर्ट लेना है जो चीज़ स्टेशनरी है। बॉल का सपोर्ट नहीं लेना है और किसी व्हील्स वाली चीज़ का सपोर्ट नहीं लेना है। Keep breathing. Keep moving. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। या तो आप यहीं रुक सकते हैं, नहीं तो आप 10 टाइम्स और कर सकते हैं मेरे साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रुकने के लिए धीरे से आप अपने दोनों हाथों के ऊपर आएंगे, नीज ऐसे पीछे क्रॉस करेंगे और धीरे धीरे बैठेंगे इस तरीके से। तो ये थे कुछ आसन जो आप अपनी 9th मंथ की प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, मिडवाइफ या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको गाइड कर सके कि ये आसन आपके लिए ठीक हैं, हेल्थी हैं और सेफ़ है, तभी आप ये आसन करें। नहीं तो आप बेड पे बैठ के कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हैंड्स की मूवमेंट कर सकते हैं, रिस्ट की मूवमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की मूवमेंट जो है वो प्रेगनेंसी के 9th मंथ में, 8th मंथ में हेल्पफुल होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा मूव करेंगे, तो अगर किसी तरीके से आपको स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है, तो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। आप म्यूज़िक लगा के भी सुन सकते हैं साथ में, जो भी आपको कंफर्टेबल रखे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और याद रखिएगा कि आपकी बेली की सपोर्ट के लिए आप बेली बैंड यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी जो शॉर्ट्स पहने हैं उसमें अवेलेबल है। या फिर आप दोनों हाथों से इस तरीके से अपनी बेली को होल्ड भी करके रख सकते हैं, ताकि आपको किसी तरीके का पेल्विक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस ना हो, क्योंकि अब तक वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय योर प्रेगनेंसी। बाय बाय।